Hello children, this video is on the lesson The 12 Months. The story is a Russian fairy tale. The story brings out an easy way of remembering the months, the season of the year, the climate, weather and vegetation related to the seasons. यह एक रशियन फेरी टेल है। साल के महीने, ऋतु, मौसम और वनस्पतियाँ याद रखने में ये कहानी मदद करती है। First I will read the paragraph, then I will explain it in Hindi. So let's start. Once upon a time, in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. One was her own child, the other was her stepdaughter. She was very fond of her own daughter, but she hated her stepdaughter. The only reason was that Morokla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. First line देखिए. Once upon a time, in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. एक समय की बात है, दूर देश में एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी. One was her own child, the other was her stepdaughter. एक उसकी सगी बेटी थी और दूसरी सौतेली बेटी थी. She was very fond of her own daughter, but she hated her stepdaughter. वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, पर अपनी सौतेली बेटी को बहुत नफरत करती थी. The only reason was that Morokla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. उसका सिर्फ एक ही कारण था, उसकी सौतेली बेटी मोरोक्ला उसकी अपनी बेटी होलेना से बहुत ही खूबसूरत थी. The gentle-hearted Morokla did not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. मोरोक्ला एक बहुत ही अच्छी कोमल हृदय की लड़की है. उसे तो पता ही नहीं कि वो कितनी सुंदर है और इसलिए उसे कभी पता नहीं चला कि उसकी माँ उस पर इतना गुस्सा क्यों है. क्रॉस मतलब गुस्सा. Morokla had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and sewing. मोरोक्ला घर का सारा काम करती थी. घर को साफ करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, कताई, बुनाई, सिलाई, ये सब काम मोरोक्ला बिना किसी कंप्लेंट के किया करती थी. She liked work and she did it all without a word of complaint, while Helena spent the time adorning herself and lazing about. उसे काम करना अच्छा लगता था, इसीलिए बिना कोई शिकायत के वो अपना काम करती थी और हेलेना सारा समय सजने संवरने में और आलस में बिताती थी. Even then, Helena and her mother scolded and rated and abused Morokla every day. इतना काम करने के बावजूद हेलेना और उसकी माँ उसे चिल्लाते थे, डांटते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे. They envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. वह दोनों मोरोक्ला से इतनी ईर्ष्या करते थे कि एक दिन वो तय करते हैं कि वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे, वह भी अकड़ाने वाली ठंड में, और उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेंगे. Go, Morokla, and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena. हेलेना मोरोक्ला से कहती है कि तुम अभी के अभी जंगल में जाओ और वॉयलेट के फूल मुझे लेके आओ. मैं उसे पहनना चाहती हूँ और उसका सुगंध लेना चाहती हूँ. बेचारी मोरोक्ला कहती है, मेरी प्यारी बहना, अभी वॉयलेट के फूल लाना नामुमकिन है क्योंकि हर जगह बर्फ है. How dare you argue when I tell you to do something? Off you go at once, and if you don't bring me violets from the forest, I will kill you, said Helena threateningly. तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की, जब मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहा. अभी के अभी जंगल में जाओ और मेरे लिए वॉयलेट के फूल लेके आओ. हेलेना एकदम धमकी देके उसे कहती है. The stepmother caught hold of Morokla, turned her out of the door and slammed it to after her. मोरोक्ला की माँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे दरवाजे के बाहर धकेल देती है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है. यही उनका प्लान होता है, उसे घर से बाहर निकालने का. उनको पता होता है कि इस बर्फ़ में उसे कहीं भी वॉलेट नहीं मिलेंगे और वो घर वापस नहीं आएगी. Morokla went into the forest weeping bitterly. The snow lay deep. There wasn't a human footprint to be seen. Morokla wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. मोरोक्ला फूट फूट के रोते हुए जंगल में चली गई. हर जगह बर्फ गहरी पड़ी हुई थी और कहीं भी लोगों के पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे. भूखे पेट और कड़क ठंड में मोरोक्ला बहुत देर तक यहाँ वहाँ भटकती रही. At last she saw a light in the distance. She went towards the glow.
which came from the top of a mountain. A big fire was burning there, and round the fire were 12 stones with 12 men sitting on them. आखिर में उसे एक प्रकाश दूर में दिखाई देता है। वो उस उजाले की तरफ बढ़ती है जो पहाड़ी की चोटी से आता है। वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि आग के चारों ओर 12 बड़े पत्थर थे और उस पे 12 लोग बैठे हुए थे। 3 of them had snow white beards, 3 were not so old and 3 were still younger. उन 12 लोगों में 3 जो लोग थे उनकी दाढ़ी बर्फ़ जैसी सफ़ेद थी, 3 ज़्यादा बूढ़े नहीं थे और 3 जवान थे। जो सबसे छोटे थे वो एकदम सुंदर दिखते थे। They were not speaking but all sitting silent. वो बात नहीं कर रहे थे, सब शांत बैठे थे। These 12 men were the 12 months. ये जो 12 लोग थे वो 12 महीने थे। Great January sat highest of all. His hair and beard were as white as snow and in his hand he held a club. Great January जो था वो बड़े पत्थर पे सबसे ऊपर बैठा था। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ़ जैसी सफ़ेद थी और उसके हाथ में एक लकड़ी थी। Morokla was frightened. She stood still for a time in terror, but growing bolder, she went up to them and said, "Please, kind sirs, let me warm my hands at your fire." उन 12 लोगों को देखकर मोरोक्ला थोड़ी डरी हुई होती है। वो थोड़ी देर तक वहाँ आतंक में खड़ी रहती है, पर आखिर में वो हिम्मत जुटाती है और उनके पास जाती है और उनसे कहती है, आदरणीय सर, मेरे हाथ सेकने के लिए प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। Great January nodded and asked her, "Why have you come here, my little girl? What are you looking for?" Great January उसे हाँ कहते हैं और उसे पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या ढूंढ रहे हो? I am looking for violets, answered Morokla. मोरोक्ला कहती है, मैं यहाँ वॉयलेट्स के फूल ढूंढने आई हूँ। This is no time to be looking for violets, for everything is covered with snow, answered Great January. Great January कहते हैं, ये समय नहीं है वॉयलेट्स ढूंढने के लिए क्योंकि अभी सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। Yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest. If I don't bring them, they will kill me. Tell me, fathers, please tell me, where can I find them? होलेना कहती है, हाँ मुझे पता है कि इस समय मुझे वॉयलेट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे, पर अगर मैंने वो नहीं लाए तो मेरी बहन और मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि वॉयलेट्स तुम्हें जंगल से लाने होंगे। कृपया मुझे बताइए कि मुझे ये वॉयलेट्स कहाँ मिलेंगे। Great January stood up and went to one of the younger months. It was March, and giving him the club, he said, "Brother, take the high seat." Great January खड़े होते हैं और एक छोटे महीने के पास जाते हैं। वो महीना होता है मार्च। उसे छड़ी देते हुए कहते हैं, भाई तुम अब इस ऊंची सीट पर बैठो। जो उस ऊंची सीट पे बैठता है वही ऋतु होता है, तो इसीलिए ग्रेट जनवरी मार्च को कहते हैं कि तुम अभी उस ऊंची सीट पे बैठो ताकि स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाए और सारे फूल खिल जाए। March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. The fire blazed up, the snow began to melt, the trees began to bud and the ground was at once covered with grass. It was springtime. मार्च उस बड़े पत्थर पर बैठा और अपनी छड़ी को आग के ऊपर से घुमाया। आग भड़क उठी और बर्फ पिघलने लगा। पेड़ों पर कलियां फूलने लगी और पूरी ज़मीन घास से कवर हो गई। यह समय था वसंत ऋतु का। The violets began to bloom among the little leaves, and before Morokla had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out on the ground. वॉयलेट के फूल पत्तों के बीच से खिलने लगे और उसके पहले मोरोक्ला कुछ समझती, उसने देखा सारे वॉयलेट्स खिल गए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने नीली चादर पूरे ज़मीन पे फैला दी हो। Now pick them quickly, Morokla, commanded March. मार्च उसे आज्ञा करते हैं कि मोरोक्ला जल्दी से सारे फूल उठा लो। मोरोक्ला picked them joyfully till she had a big bunch. Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. मोरोक्ला बहुत खुश होती है और एक बड़ा फूलों का गुच्छा उठाती है। उसके बाद 12 महीने को धन्यवाद कहकर वो खुशी खुशी घर भाग जाती है। Helena and the stepmother wondered when they saw Morokla bringing the violets,
They opened the door to her and the scent of violets filled all the cottage. होलेना और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि मोरोक्ला वॉयलेट्स लेके आती है। जैसे ही उसके लिए वो दरवाज़ा खोलते हैं, फूलों का सारा सुगंध पूरे घर में फैल जाता है। Where did you get them? asked होलेना sulkily. होलेना ने नाराज़गी से पूछा, तुम्हें ये फूल कहाँ मिले? They are growing under the bushes in a forest on the high mountains. होलेना कहती है, जंगल में ऊंची पहाड़ियों पे झाड़ियों के बीच ये सारे फूल खिले हुए थे। होलेना snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister. होलेना सारे फूल उसके हाथों से छीन लेती है और एक भी फूल वो अपनी बहन को नहीं देती। The next day she called to her sister and said, Go मोरोक्ला and get me some strawberries from the forest. दूसरे दिन वो अपने बहन को बुलाती है और कहती है, मोरोक्ला जंगल में जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ। Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said मोरोक्ला। मोरोक्ला कहती है, मेरी प्यारी बहना, इस ठंडी के मौसम में मैं स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लेके आऊँ? How dare you argue? Go at once and get me the strawberries or I will kill you. होलेना गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? अभी के अभी जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। The stepmother caught hold of मोरोक्ला and pushed her out of the door and shut it after her. मोरोक्ला की सौतेली माँ उसे पकड़कर घर के बाहर धकेल देती है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है। उनको पता होता है कि अभी उसे स्ट्रॉबेरीज नहीं मिलेंगे और वो घर वापस कभी नहीं आएगी। Morokla went to the forest weeping bitterly. The snow was lying deep and there wasn't a human footprint to be seen anywhere. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. At last, she saw the light she had seen the other day. Overjoyed, she went towards it. She came to the great fire with the 12 months sitting around it. मोरोक्ला फिर से फूट फूट के रोते हुए जंगल में चली गई। हर जगह गहरी बर्फ पड़ी हुई थी। लोगों के पैरों के निशान तक दिख नहीं रहे थे। भूख और ठंड से बेहाल वो यहाँ वहाँ भटकती रही। आखिर में उसे उजाला दिखता है जो उसे पिछले दिन दिखा था। खुश होते हुए वो उसकी तरफ जाती है जहाँ 12 महीने बैठे हुए होते हैं। प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर। वो उनसे निवेदन करती है कि मुझे मेरे हाथ सेकने दे। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर, Why have you come again and what are you looking for here? ग्रेट जनवरी उसे हाँ कहता है और पूछता है कि तुम यहाँ फिर क्यों आई हो और क्या ढूंढ रही हो? I am looking for strawberries. My sister Helena and my stepmother bade me bring some strawberries and if I don't, they will kill me. Tell me, fathers, tell me, please, where I can find them? मोरोक्ला कहती है, मैं स्ट्रॉबेरीज ढूंढने आई हूँ। मेरी बहन होलेना और मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए कहा है और अगर मैं नहीं लाती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। आप लोग ही बताओ इस मौसम में मुझे स्ट्रॉबेरीज कहाँ मिलेंगे? ग्रेट जनवरी अरोज. He went over to the month sitting opposite to him. It was June and handed the club to him, saying, Brother, take the high seat. ग्रेट जनवरी खड़े होते हैं और उनके विरुद्ध दिशा में बैठे हुए महीने के पास जाते हैं। वो होता है जून। उसे छड़ी देते हैं और कहते हैं, भाई तुम ऊंची सीट पे बैठो। June took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire shot up and its heat melted the snow in a moment. The ground was all green, the trees were covered with leaves, the birds began to sing and the forest was filled with all kinds of flowers. It was summer. जून बड़े पत्थर पे बैठते हैं और अपनी छड़ी आग के ऊपर घुमाते हैं। उससे आग भड़कती है और कुछ ही पल में सारा बर्फ पिघल जाता है। पूरा मैदान हरा हो जाता है। पेड़ों में पत्ते आते हैं, पंछी गीत गाते हैं और सारे जंगल में विविध प्रकार के फूल खिलते हैं। यह था गर्मी का मौसम। The ground under the bushes was covered with white starlets. The starry blossoms were turning into strawberries every minute. They ripened at once, and before Morokla had time to think, there were so many of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground. झाड़ियों के नीचे का मैदान सफ़ेद ताराओं से भरा हुआ लग रहा था। सफ़ेद तारा वाले फूल स्ट्रॉबेरीज में बदल रहे थे और कुछ ही पल में वो पक भी गए।
और इसके पहले मोरोक्ला कुछ सोचती, उसने देखा इतने स्ट्रॉबेरीज थे कि जैसे लग रहा था पूरा रेड कारपेट फैला हुआ है ग्राउंड पे। पिक देम एट वंस मोरोक्ला, कमांडर जून। जून मोरोक्ला को आदेश देते हैं, जल्दी से स्ट्रॉबेरीज उठा लो। मोरोक्ला picked them joyfully till she had filled her apron full. Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. मोरोक्ला खुशी खुशी सारे स्ट्रॉबेरीज अपने एप्रन में पूरा भर लेती है। उसके बाद 12 महीनों का शुक्रिया अदा करके वो खुशी खुशी घर भाग जाती है। Helena and her stepmother wondered when they saw Morakla bringing the strawberries. Her apron was full of them. Helena और उसकी माँ सोच में पड़ते हैं कि मोरोक्ला को स्ट्रॉबेरीज कहाँ मिले और वो भी इतने सारे। Where did you pick them? asked Helena sulkily. Helena ने नाराज़गी में पूछा कि तुमने इतने सारे स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लाए? There are plenty of them growing in forest on the high mountains. मोरोक्ला कहती है जंगल में पहाड़ी के ऊपर बहुत से स्ट्रॉबेरीज है। Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. They didn't leave even a single one for Morakla. Helena ने सारी स्ट्रॉबेरीज ले ली और अकेले अपनी माँ के साथ खा लिए। उन्होंने एक भी स्ट्रॉबेरी मोरोक्ला को नहीं दी। On the third day, Helena ordered, "Morakla, go into the forest and get me some red apples." तीसरे दिन हेलेना मोरोक्ला को आदेश देती है, मोरोक्ला जंगल में जाओ और मेरे लिए रेड एप्पल्स लेके आओ। The stepmother caught hold of Morakla and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. इस बार मोरोक्ला की सौतेली माँ ने उसे पकड़ा और जोर से दरवाज़े के बाहर ढकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। Morakla went to the forest again, weeping bitterly. But she didn't wonder about this time. She ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting round the fire. Morakla रोते रोते जंगल में चली गई, पर इस बार बिना इधर उधर भटके वो सीधा पहाड़ी पे गई जहाँ बड़ी आग थी और 12 महीने उसके चारों ओर बैठे थे। Please, kind sirs, help me. मोरोक्ला उनसे विनती करती है कि मेरी मदद करे। ग्रेट जनवरी nodded and asked her, "What are you looking for today?" ग्रेट जनवरी उसे हाँ कहते हैं और उसे पूछते हैं कि आज क्या ढूंढने आई हो। I am looking for red apples. If I don't bring them, my sister and my mother will kill me. Tell me, father, tell me, please, where I could find them. मोरोक्ला कहती है आज मैं रेड एप्पल्स ढूंढने आई हूँ और अगर मैं नहीं लेके गई तो मेरी बहन और मेरी माँ मुझे मार डालेंगे। आप लोग ही बताओ मुझे ये फल कहाँ मिलेगा। Great January rose up. He went over to one of the older months. It was September. He handed the club to him and said, "Brother, take the high seat." Great January खड़े होकर एक बुजुर्ग महीने के पास चले गए, वो था सितंबर। उन्होंने छड़ी देकर उनको कहा, भाई आप ऊंची सीट पे बैठो। Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame. The snow began to melt, but there was a cold wind that sent the faded leaves down to the ground. It was autumn. Morakla saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. September ऊंची सीट पे बैठते हैं और छड़ी आग के ऊपर घुमाते हैं। आग से लाल ज्वाला भड़कती है, बर्फ पिघलने लगता है, परंतु वहाँ ठंडी हवा होती है जो सूखे पत्तों को ज़मीन पे नीचे गिराती है। वह हेमंत ऋतु होता है। मोरोक्ला देखती है वहाँ सिर्फ एक ही एप्पल ट्री होता है जिस पे एप्पल्स बहुत ऊपर की तरफ लटकते होते हैं। शेक द ट्री एट वंस मोरोक्ला, कमांडेड सितंबर। सितंबर मोरोक्ला को आज्ञा देते हैं, जल्दी से झाड़ को हिलाओ। राइट, ग्लैडली मोरोक्ला shook the tree and first one apple fell down and then another. मोरोक्ला खुश होकर झाड़ हिलाती है, पहला एप्पल गिरता है, उसके बाद दूसरा। Now मोरोक्ला, that's enough. Run home quickly, shouted the months. जैसे ही मोरोक्ला 2 एप्पल उठाती है, सब महीने एक साथ चिल्लाते, बस अभी इतना बस हो गया, अब तुम घर पे भाग जाओ। मोरोक्ला obeyed at once. She picked up the apples, thanked the months with all her heart and ran merrily home. मोरोक्ला ने उनका कहा सुना
उसने 2 एप्पल उठाए और दिल से उनको धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर भाग गई। Helena and the stepmother wondered when they saw Morokla bringing the 2 apples. Helena और उसकी माँ सोच में पड़े, अरे मोरोक्ला को ये एप्पल्स कहाँ मिले? Where did you get them? asked Helena. Helena ने उसे पूछा, अरे तुमको ये कहाँ मिले? Morokla says, I found them in the forest on the high mountains. मोरोक्ला कहती है, मुझे जंगल में ऊंची पहाड़ियों पे ये मिला। And why didn't you bring more? Or did you eat them on the way home? said Helena harshly. Helena कठोरता से कहती है, तुमने ज़्यादा क्यों नहीं लाए? क्या तुमने बीच रास्ते में खा लिए? Alas, sister dear, I haven't even tasted them. I shook the tree twice. 2 apples fell down and they wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home, protested Morokla. मेरी प्यारी बहना, मैंने तो उन्हें चखा भी नहीं। मैंने 2 बार पेड़ हिलाया और 2 एप्पल नीचे गिरे और फिर उन्होंने मुझे पेड़ हिलाने से मना किया। वो सब चिल्ला के बोले, अब सीधे घर जाओ। मोरोक्ला ने अपने पे हुए चोरी के इल्ज़ाम का विरोध किया। May you be struck to death by lightning, said the wicked Helena and began to eat the apple. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. Helena गुस्से में मोरोक्ला से कहती है, तुम पे बिजली गिर जाए और तुम मर जाओ। और फिर वो एप्पल खाने लगती है। Helena अपनी माँ से कहती है, ये एप्पल इतने मीठे हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इतने मीठे एप्पल चखे नहीं है। उसकी माँ को भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और जब दोनों के एप्पल ख़त्म होते हैं उनको और एप्पल चाहिए होते हैं। मदर, गिव मी माई फर कोट, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवरसेल्व्स एंड गेट द एप्पल्स। दैट रैग लिटिल wretch would eat them all up again on her way home. We will find the place all right and I will shake them all down, however they shout at me. Helena अपनी माँ से कहती है, माँ तुम मुझे मेरा कोट दो, चलो हम जंगल में जाते हैं और एप्पल्स लेके आते हैं। इसे अगर हमने फिर से लाने के लिए कहा तो वो बीच रास्ते में सारे एप्पल्स खा लेगी। हम वो जगह ढूंढते हैं और सारे एप्पल्स नीचे गिराते हैं। उनको जितना चिल्लाना है चिल्लाने दो। Her mother agreed readily. They wrapped themselves in fur coats and shawls and off they went to the forest. Helena की माँ इस बात पे झट से तैयार हो गई। उन्होंने अपने आप को फर कोट और शाल से ढक लिया और चले जंगल की तरफ। आपने देखा होगा कि मोरोक्ला को उन्होंने बिना शॉल या बिना स्वेटर के बाहर निकाल दिया था। The snow lay deep and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months was sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission or speaking one polite word. उन्होंने देखा बाहर गहरी बर्फ पड़ी थी और वो इधर उधर भटकने लगे। आखिर में उन्हें वो आग दिख गई जहाँ 12 महीने चारों ओर बैठे हुए थे और बिना परमिशन लिए वो अपने हाथ सेकने लगे। इनका दुर्व्यवहार देखकर ग्रेट जनवरी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या ढूंढ रहे हो? Why do you want to know, you old fool? replied Helena angrily. It's no business of yours, said her mother. Helena गुस्से में कहती है, तुमको क्यों पता करना है ओए बुढ़ाओ? और उसकी माँ कहती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना काम करो। Great January frowned and swung the club over his head. The sky grew dark in a moment. The fire burned low. The snow began to fall thick and an icy wind began to blow through the forest. Helena and her mother couldn't see one step in front of them. Great January को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी छड़ी सिर के ऊपर घुमाते हैं। कुछ ही समय में काले बादल घने होते हैं, आग कम होने लगती है, हिमपात होने लगती है और ठंडी हवा पूरे जंगल में बहने लगती है। इसकी वजह से हेलेना और उसकी माँ को सामने कुछ दिखाई नहीं देता। They tried to find their way out, but the snow fell in huge masses and soon they were lost in it. वो दोनों अपना रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, पर बर्फ इतनी मात्रा में गिरती है कि वो दोनों खो जाते हैं। At home, Morokla waited and waited, and yet Helena and her mother did not come back. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. At last, she returned home sadly. घर पे मोरोक्ला अपनी माँ और बहन का इंतज़ार करती है, पर वो नहीं आते।
फिर वो उन्हें ढूंढने निकलती है। उसे ना ही अपनी माँ और बहन मिलती है, ना ही 12 महीने मिलते हैं। आखिरकार वो उदास मन से घर लौट आती है। So, good Morokla inherited the cottage and the land around it. She married a kind husband and they both lived happily ever after. मोरोकला को घर और ज़मीन विरासत में मिलती है। वो शादी करती है, उसका पति भी उसकी तरह अच्छा होता है और वो खुश रहते हैं। The story ends with Morokla living a happy life. The story also highlights that good always triumphs over evil. If you like this video, don't forget to share it with your friends. Thank you.